Hello students, welcome back to the e-learning platform of BSIT's Mechanical Engineering Department. I am Viren Birdi and we are studying manufacturing processes carrying the subject code 22446. We are learning unit number 3, casting processes and plastic molding. In the previous video, we have discussed about core and core print. In this video, we are going to learn more about the molding methods and also the gating system that is used in the casting. So let's get started. Mold. Now, prepared molding sand is packed rigidly around the pattern. जी आपण मोल्डिंग सँड तयार केलेली असते ती एका पॅटर्नच्या बाजूनी आपण सगळीकडं व्यवस्थित पॅक करून घेत असतो. When the pattern is removed, a cavity corresponding to the shape of the pattern remains in the sand, which is known as mold or mold cavity. जेव्हा आपण त्याच्यातला पॅटर्न काढून घेतो तेव्हा त्या पॅटर्नच्या शेपची एक कॅव्हिटी तयार झालेली आपल्याला दिसते आणि ती कॅव्हिटी म्हणजेच मोल्ड किंवा मोल्ड कॅव्हिटी. Hence, mold is a sort of a container which, when poured with molten metal, produces a casting of the mold shape. म्हणजेच मोल्ड इज नथिंग बट अ कंटेनर की ज्याच्यामध्ये आपण मोल्टन मेटल पोर करतो, ओततो आणि त्याच्यानंतर ते सॉलिडिफाय झाल्यानंतर त्या मोल्डचा जो शेप आहे त्या शेपचं कास्टिंग आपल्याला मिळतं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मोल्ड इज कॉल्ड ॲज मोल्ड मेकिंग. मोल्ड तयार करण्याच्या जी प्रोसेस आहे त्याला आपण मोल्ड मेकिंग असं म्हणतो. Now, what are the essential characteristics of a mold? The first is mold should have refractoriness to bear the high heat of molten metal. It should have strength to hold the weight of the molten metal. त्याला ते molten metal बेअर करण्याची स्ट्रेंथ असली पाहिजे किंवा होल्ड करण्याची स्ट्रेंथ असली पाहिजे. ऑल्सो इट शुड प्रोड्यूस मिनिमम अमाऊंट ऑफ मोल्ड गॅसेस. जे काही गॅसेस तयार होतात ते गॅसेससुद्धा कमी प्रमाणामध्ये तयार झाले पाहिजेत. इट शुड बी एबल टू रेझिस्ट द इरोजन ॲक्शन ऑफ द मोल्टन मेटल बीइंग पोर्ड. गरम मोल्टन मेटल जेव्हा आपण त्या मोल्डमध्ये ओततो तेव्हा जी इरोजन ॲक्शन होते ती इरोजिव्ह ॲक्शनसुद्धा त्या मोल्डमध्ये कमी झाली पाहिजे. अँड अ मोल्ड शुड रेझिस्ट मेटल पेनिट्रेशन इन टू द वॉल्स. जे काही आपण मोल्टन मेटल ओततोय ते त्या मोल्डच्या वॉल्समधनं आत जाता कामा नये. सो दीज आर द इसेन्शियल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोल्ड. Now let us see the different processes for the mold making. There are different ways of classifying molding processes. Some of the common ways are: the first classification is based on as per the method used. आपण कुठल्या पद्धतीने तो मोल्ड तयार करतोय त्याच्यावरती त्याचं पहिलं क्लासिफिकेशन आहे. सो अंडर दॅट वी हॅव फ्लोर मोल्डिंग, पिट मोल्डिंग, bench molding and machine molding. Depending upon the mold materials, they are classified as sand molding, in which it is classified as green sand molding, dry sand molding, loam molding, shale molding, and cement banded sand molding, skin dried sand molding, core sand molding, and carbon dioxide molding. So these are the major classification of mold making. Then they are also classified on the basis of mold materials like plaster molding and metallic molding. सँड मोल्डिंग तर आहे, त्याच्यानंतर आपण प्लास्टरचं सुद्धा मोल्ड तयार करू शकतो आणि मेटलचं सुद्धा तयार करू शकतो.
Now let us discuss floor molding in detail. When mold size is large, molding work is carried out on the foundry floor. Directly आपण तो मोल्ड जो आहे तो आपण त्या फाउंड्रीच्या फ्लोअरवरतीच तयार करतो आणि म्हणून त्याला फ्लोअर मोल्डिंग असं म्हटलं जातं. This method is mainly used for medium and large sized castings. The mold has its drag portion in the floor itself and cope portion may be rammed in the box and inverted on the floor. आपल्याला माहिती आहे मोल्डचे दोन भाग असतात. खालचा भाग असतो त्याला ड्रॅग म्हणतात आणि वरचा भाग जो असतो त्याला कोप असं म्हणतात. मग ह्या फ्लोअर मोल्डिंगमध्ये जो ड्रॅग पोर्शन आहे तो आपण फ्लोअरमध्येच तयार करतो आणि जो वरचा कोप पोर्शन आहे तो आपण एका बॉक्समध्ये तयार करून तो आपण त्याच्यावरती इन्व्हर्टेड पोझिशनमध्ये बसवू शकतो. बाय धिस मेथड बोथ ग्रीन अँड ड्राय सँड मोल्ड कॅन बी मेड. In floor molding, venting of molds sometimes create problems. Hence, a bed of coke may be laid in the bottom of the mold, which is later connected to the atmosphere by using two vent pipes erected by the sides of the mold. This method is used for producing parts such as wheels, pulleys, cylinder covers, ribbed plates, etc. Now let us see a video on floor molding.
So that was about the floor molding. Now let us discuss one more type of molding, that is bench molding. When the mold size is small and light in weight, molding work is carried out on a bench. वरच्याच बाजूला आपण एका बेंचवरती किंवा टेबलवरती आपण मोल्डिंग करू शकतो आणि त्याला आपण बेंच मोल्डिंग असं म्हणतो. जर मोल्ड साईज मोठा असेल तर आपण फ्लोअर मोल्डिंग करणार आणि जर मोल्ड साईज छोटा असेल तर आपण बेंच मोल्डिंग करणार. By this method, both green and dry sand mold can be made. Both cope and drag are rammed on the bench itself. जसं फ्लोअर मोल्डिंगमध्ये ड्रॅग हा खाली होता जमिनीवरती, तसं न ठेवता कोप आणि ड्रॅग हे दोन्हीसुद्धा बेंचवरतीच असतील. Molds for both, that is ferrous and non-ferrous castings, are made on the bench mold. Let us see नमस्कार the दोस्तों, video on bench आज हम molding. बात करेंगे बेंच टाइप मोल्डिंग की. मोल्डिंग से मीनिंग क्या है? मोल्डिंग एक प्रोसेस है थ्रू विच वी कैन मेक मोल्ड्स. मींस जिस प्रोसेस की सहायता से हम कोई मोल्ड बनाते हैं. मोल्ड से मीनिंग दो पार्ट बनाते हैं, दो पार्ट्स में केविटी प्रोड्यूस करते हैं, उस केविटी में मोल्टन मेटल डालते हैं, पोर करते हैं और उस मोल्टन मेटल की सहायता से कास्टिंग को प्रोड्यूस करते हैं. तो ये होती है मोल्डिंग. तो यहां पे हम बात करेंगे बेंच मोल्डिंग के बारे में. इससे मीनिंग क्या है कि जिस प्रोसेस को किसी बेंच पे करें, जिस कास्टिंग को बनाने के लिए एक तरह की बेंच का यूज करें, मोल्ड्स को बेंच पे रखें और आसानी से कास्टिंग को बनाएं, तो वो होता है बेंच मोल्डिंग. मेनली ये किस में यूज होता है? स्मॉल कास्टिंग्स के लिए यूज होता है जो बिल्कुल लाइट इन वेट होती है. बेंच मोल्डिंग जो प्रोसेस है वो हम फेरस मटेरियल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. नॉन फेरस टाइप्स जो कास्टिंग्स हैं उनको बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो जो कंप्लीट ऑपरेशन है इसका वो केवल एक बेंच पे होगा, क्योंकि इसका जो नेम है वो भी क्या कहता है? बेंच मोल्डिंग. अब इसके मेन कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. इसमें दो, जो हमारा एक मोल्ड रहेगा उसके दो पार्ट रहेंगे. पहला जो पार्ट है ऊपर वाला उसको बोलते हैं कोप. जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ड्रैग. तो इससे मीन क्या हुआ कि हमारा जो मोल्ड तैयार होगा वो दो पार्ट से बनके तैयार होगा. तो दो पार्ट से मतलब कोप और ड्रैग को मिला के हम आसानी से एक मोल्ड बनाते हैं. फिर क्या करेंगे? पैटर्न की सहायता से हमें केविटी प्रोड्यूस करनी है. पैटर्न लगा के और हम केविटी बनाएंगे. तो केविटी में ही मोल्टन मेटल को पोर करना रहता है. अब मोल्टन मेटल को पोर करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए? एक पोरिंग बेसिन चाहिए. उस पोरिंग बेसिन का जो टॉप सरफेस रहेगा उसमें वायर्स आपस में मैच रहेंगी, जैसे रिडल होती है, मींस छलनी रहती है. इसका बेसिक फंक्शन होगा इंप्यूरिटीज को स्टॉप करना. इससे नीचे जो पार्ट रहता है इसको बोलते हैं स्प्रू. स्प्रू से मीनिंग क्या है? इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका डाया ज्यादा रहता है, जबकि नीचे वाला जो है इसका डाया कम रहता है. तो ये स्पीड बढ़ाने के काम आता है, इसलिए इसको इस तरह का बनाया जाता है. लेकिन जो नीचे स्प्रू का बेस है उसको कुछ इस तरह से बनाया जाता है. इस तरह से क्यों बनाया जाता है? ताकि टर्बुलेंस ना हो. वो जो ऊपर से मोल्टन मेटल आएगी, मोल्टन मेटल से मीनिंग क्या है? जैसे प्लास्टिक से कोई कास्टिंग बना रहे हैं तो प्लास्टिक को पिघलाना, तो वो मोल्टन मेटल है. या फिर मेटल को पिघलाएं, किसी मेटल की सहायता से कास्टिंग बना रहे हैं तो वो मेटल एकदम से आके गिरेगी, तो गिरते ही इस पे स्ट्राइक करेगी वापस. यदि इसको हम ऐसा नहीं बनाते तो वो उस पे स्ट्राइक करती, तो स्ट्राइक करेगी तो वहां पे टर्बुलेंस होगी. उस चीज को रिड्यूस करने के लिए स्प्रू का बेस इस तरह से बनाया जाता है ताकि जो मोल्टन मेटल है वो यहाँ पे गिरे और आराम से रनर में फ्लो कर सके. रनर का फंक्शन क्या होगा? इट इज द पैसेज ऑफ मोल्टन मेटल, कि ये मोल्टन मेटल का बहने का स्थान है. जैसे कोई फवारा लाइन है खेत में, उसमें जो पाइप लगे रहते हैं तो पाइप में से जो पानी सर्कुलेट होता है, तो ये एक बहने की जगह है. मींस यहां से मोल्टन मेटल बहेगी. फिर हमारे गेट्स आ जाते हैं. उन गेट्स के थ्रू क्या है? गेट से मीनिंग क्या है? गेट्स हमारे ओपनिंग है. मोल्टन
मेटल के लिए। किस में जाने के लिए? इस केविटी में जाने के लिए। तो गेट्स जैसे हमारे घर के अंदर हम एंट्री करते हैं गेट ओपन करके, तो उसी तरह के गेट हैं जो इस केविटी में मोल्टन मेटल को एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एक केविटी फिल होगी। अब जो राइजर है उसका क्या फंक्शन होगा कि इस केविटी को कंप्लीट फिल रखना। जब मेटल श्रिंक हो, मेटल जब ठंडी होने लगे तो उसमें श्रिंकेज होगा, मीन्स सिकुड़ेगी। तो सिकुड़ने लगे तो भी उस जो हमारी कास्टिंग रहेगी उसको एक्स्ट्रा मेटल प्रोवाइड करना, ये फंक्शन होता है इस राइजर का। अब बात करते हैं कि किस तरह से इसमें कास्टिंग प्रोड्यूस होती है। हम सबसे पहले एक क्रूसिबल में, कंटेनर में, वहां पे मेटल्स को डाल के उसको हीट प्रोवाइड करके और फाइनली उसको पिघला लेते हैं, मोल्टन मेटल बना लेते हैं। फिर एक जो डब्बा होता है घर में, उसी तरह का बोलते हैं टेक्निकली, उसको कहते हैं पडल। पडल को उसमें डुबोएंगे और फिर उस मोल्टन मेटल को इसके पास लाएंगे। अब इसमें मोल्टन मेटल डालते हैं तो यहाँ पे जो भी इंप्यूरिटीज होंगी वो स्टॉप हो जाएंगी। अब यहां से वो बहेगी, वो मोल्टन मेटल पास होगी। मोल्टन मेटल पास होने के बाद आगे जाएगी ये, इट मींस पैसेज में से जाएगी, रनर में से जाएगी और फाइनली केविटी के इनसाइड फिल हो जाएगी। जब केविटी में मेटल सॉलिडिफाई होगी, श्रिंकेज होगी, तो ये इसको एक्स्ट्रा मेटल राइजर प्रोवाइड करेगा ताकि आसानी से ये कंप्लीट हर कोने तक फिल रहे और हमारी जो कास्टिंग रहेगी वो एग्जैक्ट शेप और साइज की प्रोड्यूस हो, जिससे हमें एक्यूरेसी का लेवल मिले, हाई क्वालिटी की कास्टिंग्स मिले, जहां पे यूज करें वो एग्जैक्ट अपना फंक्शन करे। ये जो डबल पिंस होती हैं, इन डबल पिंस का क्या फंक्शन होता है कि एक जगह दोनों को आमने सामने अलाइन करे, कोप और ड्रैग पार्ट को, और प्रॉपरली होल्ड करके रखे इस कोप पार्ट को। मींस ये ड्रैग पार्ट इस कोप पार्ट को अलाइनमेंट करने के बाद प्रॉपरली होल्ड करके रखे। तो ये होता है बेंच मोल्डिंग, जिसकी सहायता से आसानी से हम लाइट वेट कास्टिंग्स बना लेते हैं, स्मॉल कास्टिंग्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। थैंक यू दोस्तों। So that was about the two molding processes, floor molding and bench molding. Now let us discuss the gating system. मागाच्या व्हिडिओमध्ये आपण ते बघितलंय, but let us discuss it once again. So gating is the term applied to the method of forming channels in the sand through which the molten metal travels from the sprue hole to the mold and out of the mold to the riser. गेटिंग ही सिस्टीम ही चॅनल सिस्टीम आहे ज्याच्या थ्रू ते जे मोल्टन मेटल आपण ओततो ते आपण स्प्रू होलमध्ये ओततो आणि तिथून ते ट्रॅव्हल करतं गेट्समधनं अँड इट रीचेस द मोल्ड अँड द एक्स्ट्रा वॉट एवर मोल्टन मेटल इज देअर दॅट राइजेस थ्रू द राइजर. Gating system refers to all channels by means of which molten metal is delivered to the mold cavity. ज्या चॅनल्समधनं ते मोल्टन मेटल मोल्ड कॅव्हिटीपर्यंत पोचतं त्याला आपण गेटिंग सिस्टीम असं म्हणतो. सिन्स द वे इन विच लिक्विड मेटल एंटर्स द मोल्ड हॅज अ डिसाइडेड इन्फ्लुअन्स ऑन द क्वालिटी अँड साऊंडनेस ऑफ अ कास्टिंग. The different passages for molten metal are carefully designed and produced. So the picture shows the gating system. जे काही वेगवेगळे भाग आहेत ते आपण या फिगरमध्ये दाखवलेले आहेत. So the components of the gating system are pouring cups and basins. So this is the pouring cup. हा स्प्रू आहे आणि स्प्रूच्या वरच्या बाजूला हा pouring cup आणि हे बेसिन असतं नरसाळ्यासारखं की ज्याच्या थ्रू आपण या लॅडलमधलं मोल्टन मेटल या स्प्रूनी इकडं खाली ओतणार. देन वी हॅव द स्प्रू. हा स्प्रू आहे एक स्ट्रॉसारखं की ज्याच्या त्या चॅनलमधनं ते खाली सगळं मोल्टन मेटल स्प्रू बेसपर्यंत येईल. देन वी हॅव द रनर ज्याच्यातनं द मोल्टन मेटल रन्स, त्याच्यातून ते इकडं
पुढे येणार. पुढं आलं की ते वेगवेगळ्या गेट्समधनं जाणार, आत जाणार, जिथं कास्टिंग आपल्याला तयार करायचं आहे. अँड देन वी हॅव द रायझर. म्हणजे कास्टिंग पूर्णपणे भरले का नाही हे कसं कळणार, तर हे जे काही मोल्टन मेटल वरती येईल एक्स्ट्रा, कारण याच्यामध्ये एअर पण असते, ती एअर पण या रायझरमधनं बाहेर जाते आणि हळूहळू जसं कास्टिंग भरेल तसं तसं ते मोल्टन मेटल याच्यावरती राईज होतं. अँड दॅट इज द रिझन इट इज नोन ॲज द रायझर. सो दॅट इज द गेटिंग सिस्टीम वी यूज फॉर casting. So to revise about this particular video, we have seen the different molding methods, and also in molding methods we discussed floor molding and bench molding, and we also discussed about the gating system used in the casting. In the next video we will discuss furnaces. Till then, thank you for watching and take care.